breaking news coming in as far as BJP is concerned. Remember, BJP is now protesting against the Delhi government yet again. This time in the national capital. Remember, over the weekend as well, we had seen similar such protests that have been underway by the Delhi BJP faction, protests against the Aam Aadmi Party government's new liquor policy, and how many of them had also been detained. My colleague Nakul also joins us live on this broadcast. Yes, Nakul, what's happening there? Well, it was difficult to understand your question at the same time, but there is a network issue. But you can see behind me that the BJP workers, they had gathered here outside the Andhra school here at the DDU Marg. They wanted to go towards the Aam Aadmi Party office. At the same time, the police, the workers, they didn't have the permission to go any further. So police have detained some of the party workers. You can see behind me that there are buses in which the party workers have been detained by the police. At the same time, this protest was under the leadership of Delhi BJP President Adesh Gupta and Leader of Opposition of Delhi Assembly, Mr. Rambir Singh Biduri. At the same time, we can see here that General Secretary of the BJP, Kuldeep Chahal, is also present here. Let's also speak to him. Sir, आपको डिटेन कर लिया गया है, क्या मांगे हैं आप लोग आज यहाँ पर आए थे? भ्रष्टाचारियों की, दलालों की, आतंकवाद का समर्थन करने वालों की जो सरकार है, वो अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी बर्खास्त हो, उनकी गिरफ्तारी हो। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम जब तक इस पे कोई निर्णय सरकार नहीं आ पाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और वो दिन दूर नहीं जब इस भ्रष्टाचार दलाली में अरविंद केजरीवाल जी को भी अंदर जाना पड़ेगा। उनके एक साथी हमें बता रहे थे कि चहल साहब, अरविंद केजरीवाल जी की पैंट ढीली और गीली हो गई है, रात की नींद, दिन का चैन खो गया है, क्योंकि चोरी उजागर हो गई है, शराब की दलाली पकड़ी जा चुकी है। दीप जी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब से पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई है, तब से बीजेपी उन पे अटैक कर रही है। आपका उस पर क्या कहना है? पंजाब में क्या हालत कर दी है, खालिस्तान का किस तरह समर्थन हो रहा है, किस तरह से नशे वहां पर बढ़ता जा रहा है, ये हम सबने देखा। और जिस तरह से नशे में पंजाब को डुबाया जा रहा है, उसी तर्ज पे दिल्ली को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगी। So this was BJP General Secretary Kuldeep Chahal, who was also present here in the protest. BJP have detained some of the party workers, and you can see behind me that these are the buses in which the party workers have been detained. These are the BJP workers. They had gathered here to protest against the Aam Aadmi Party government, and we also would like to go and speak to the Leader of Opposition Rambir Singh Biduri, who was also present in this particular protest. Let's also speak to him about the situation, and also the BJP workers who were present here. They wanted to cross the barricade to go towards the Aam Aadmi Party office, but they were detained because since they didn't have the permission to go any further. Let's also speak to the Leader of Opposition Rambir Singh Biduri. Sir, आप लोग यहाँ पर आए हैं, परमिशन नहीं थी, फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं सर आपकी? और जो आप लोग बोल रहे हैं कि बर्खास्त कर देंगे, तब तक आपका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? देखिए, पार्टी ने इसकी घोषणा कर दी है। मनीष सिसोदिया को और इनके दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद हैं, जब तक इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। विधानसभा में भी आवाज़ मजबूती के साथ हम उठाएंगे और दिल्ली की उन गलियों में जहां मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर इन्होंने सैकड़ों शराब के ठेके खोले हैं, वहां भी हमारा आंदोलन पहले से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अभी तो सत्येंद्र जैन जेल गए हैं, कल सिसोदिया भी जाएगा, परसों पीडब्ल्यूडी का घोटाला भी सामने आएगा, जल बोर्ड का घोटाला भी सामने आएगा, राशन का घोटाला भी सामने आएगा, डीटीसी में जो बड़ा भयंकर घोटाला हुआ है वह भी सामने आएगा। जो बसें आउटडेटेड हो गई हैं, जो उम्र दराज हो गई हैं, उनको दिल्ली की सड़कों पर अगले 3 साल तक चलाया जाए, तो उनकी मेंटेनेंस पर एक बस के ऊपर 3 साल में 50 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल की सरकार खर्च कर रही है। 50 लाख रुपए में तो एक नॉन एसी बस नहीं खरीदी जा सकती है। तो ये जो बहुत सारे घोटाले उनकी सरकार ने किए हैं, पॉलिसी के ऊपर जो घोटाले की आप बात कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? आप मुझे ये बताइए, पहले शराब के ठेकेदार को 2.5% कमीशन मिलता था,
उसको बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। पहले 21 ड्राई डेज थे, उसकी संख्या घटाकर 3 कर दी। यदि लोग ये शिकायत कर रहे हैं शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो पहले सरकार की लैब में जांच होती थी। अब अरविंद केजरीवाल ने ये अधिकार भी शराब के ठेकेदारों को दे दिया कि वही बताएंगे कि शराब की क्वालिटी ठीक है या खराब है। और इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर कम से कम 400 शराब के ठेके मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में खोले गए हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास इस बात का जवाब है? 130 करोड़ रुपया खजाने से उनको दिया गया है, उसकी जानकारी आपको हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी ने दी है। 30 करोड़ रुपया जो सिक्योरिटी दिल्ली सरकार के पास जमा थी, जो वापस नहीं की जा सकती है, वह भी वापस कर दी गई है। तो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और जो सिसोदिया ये कहते थे कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को हर साल 10,000 करोड़ रुपए की आय होगी, तो जितनी आय पहले हो रही थी जब सरकार के हाथ में ये कारोबार था, वह